آپ دیکھ رہے ہیں آزاد بول انڈیا کا ہیڈ لائن شو۔ آج ہے 24 اکتوبر 2024 اور میں ہوں عادل خان آزاد۔ دنیا کے سب سے بڑے اخباروں سے چنی گئی سب سے بڑی خبروں میں آج آپ دیکھیں گے لبنان پر اسرائیل نے کیے خطرناک حملے، ساؤتھ میں 3 لبنانی فوجیوں کی موت، کیا بڑھ جائے گی ٹینشن؟ حزب اللہ نے پیش کی خطرناک لسٹ، 2 درجن سے زیادہ اسرائیلی ٹینک کے چیتڑے اڑانے کا دیا بیورا۔ حماس نے پوتن سے کر دی بڑی اپیل، اسرائیل میں مچی کھلبلی، کیا جل چڑھے گی جنگ کی بلی؟ نارتھ غزہ میں ہر طرف آگ، اسرائیل نے فائر بریگیڈ کو کیا پوری طرح سے برباد۔ ترکی میں آتنکی حملے کی ٹائمنگ پر اٹھے سوال، ایردوغان کے اشارے پر سیریا اور عراق میں ہوئی ایئر اسٹرائک۔ ایرانی فورن منسٹر نے کیا ویسٹ کی بربادی کا اشارہ، لکھا سورج پشچم میں ہی ڈوبتا ہے۔ برکس میں ایران کا دبدبہ بڑھنے پر لکھی پوسٹ۔ اور ایرانی صدر پزشکیان نے کی شی جن پنگ سے ملاقات، غزہ لبنان میں جنگ رکوانے پر ہوئی اہم بات چیت۔ تو سب سے پہلی خبر حماس اور روس سے جڑی ہوئی۔ حماس نے ایک ایسا ایکشن لیا ہے، روس کے ساتھ مل کر بات چیت ایسی کی ہے، اگر یہ مکمل ہو جاتی ہے تو جنگ پر بادل منڈرا سکتے ہیں۔ جنگ کے بادل تو ہمیشہ منڈراتے ہیں، جنگ پر وہ اسرائیل کی سمجھ، اسرائیل بھی کسی آ گیا ہے۔ حماس نے یہ رشیا سے کہا ہے یا رشیا سے یہ چاہا ہے، کیونکہ حماس کے آفیشل روس میں موجود ہیں، روس میں برکس کی میٹنگ چل رہی ہے، مسعود پزشکیان بھی، ایران والے صدر بھی ہیں، خیر ان کی بات الگ آگے کریں گے، لیکن حماس کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ حماس کے آفیشلز نے پوتن ایڈمنسٹریشن سے ملاقات کی، یا پوتن سے ملاقات کی، اور یہ کہا کہ وہ غزہ میں امن چاہتے ہیں اور غزہ میں ایک یونٹی گورنمنٹ چاہتے ہیں غزہ میں جنگ رکنے کے بعد، اور یہ جنگ جلد رکوائی جائے۔ ہم یونٹی گورنمنٹ کے لیے تیار ہیں۔ یونٹی گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی کے ساتھ مل کر، پی ایل او کے ساتھ مل کر ہم گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں، محمود عباس کے ساتھ ہم سرکار چلانا چاہتے ہیں غزہ میں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کا نظام غزہ کے لوگوں فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہی ہو، نہ کہ کسی باہری یا کسی اور عرب ممالک کے شخص کے ہاتھ میں، جس کے پیچھے کی ڈوری امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں ہو۔ نہیں، یہ تسلیم نہ ہوگا، لہٰذا آپ مداخلت کریے۔ ہم چاہتے ہیں روس، جو سب سے بڑی طاقتوں میں اس دنیا کی شمار ہے، وہ بات کرے، غزہ میں جنگ رکے، اور غزہ میں جنگ رکنے کے بعد کس کا نظام ہو، اس پر بات کری، یونٹی گورنمنٹ بنائے، یونٹی گورنمنٹ پوسٹ فار غزہ۔ اور اس کو لے کر اسرائیل بل بلایا، اور یہ بات بڑی جو ہے حماس کے آفیشل نے بڑی مضبوطی سے کی ہے۔ اس کو لے کر اسرائیلی اخباروں میں کھلبلی ہے۔ اسرائیل لکھ رہا ہے کہ دیکھو یہ وہاں چلے گئے ہیں، یہ وہاں چلے گئے ہیں، اس طریقے کی بات کر رہے ہیں، ہم پہ حملے۔ لیکن اندر ہی اندر ڈر یہ ہے کہ روس نے جس طریقے سے، اگر پکے طریقے سے بات رکھ دی، ٹھوس طریقے سے، تو کیا ہوگا؟ اور روس نے اگر یہ کہہ دیا کہ جنگ بند کیجئے، بہت ہوا۔ بس روس اس لیے نہیں کہہ سکتا، پھر لوگ کہیں گے کہ تم یوکرین میں بند کرو، ارے جنگ تم دن رات لڑنے والے، ہمیں جنگ رکنے، تو روس کبھی ڈائریکٹ نہیں کہے گا، لیکن روس پیچھے سے پراپر چینل تیار کرے گا، ایک ماحول تیار کر سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، پیلسٹینین اتھارٹی کے چیف یعنی پریزیڈنٹ محمود عباس کو دعوت دی گئی ہے برکس میں، اور وہ گئے ہیں، وہ وہاں موجود ہیں۔ کیوں؟ جس خطے کو ایک ملک کے طور پر ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا، فلسطین نام کے کسی ملک کو یہ لوگ ایگزسٹ مانتے ہی نہیں۔ ہمیشہ اس بات کی بات ہوتی رہتی ہے کہ فلسطین ایک آزاد ملک بنے، اس کی ساری چیزیں، ساری پاور اسرائیل نے سیز کر رکھی ہیں۔ اگر اس کی پیلسٹینین اتھارٹی کا پریزیڈنٹ جاتا ہے روس، تو آپ اسے بڑی گھٹنا مانیے اور سوچئے کیا ہو رہا ہوگا۔ اور پھر وہاں حماس کے آفیشلز بھی ہیں، اب ظاہر سی بات حماس اور فتح بھی ملیں گے وہاں پر، ہو سکتا ہے روس کچھ بات کرائیں۔ چلیے اسے بعد میں سمجھیں گے، بڑی خبر ہے یہ۔ اسرائیلی اٹیکس راک بیرٹ، کل 3 لیبنیز سولجرز ان ساؤتھ۔ لبنان میں کل بہت خطرناک حملے کیے، رات بھر اور صبح سے بھی، بیروت میں خاص طور سے، اور اسرائیلی ایئر فورس نے، آئی ڈی ایف نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ایک بہت بڑا جو ہے اڈا اور گودام تباہ کر دیا، جہاں پر حزب اللہ کی میزائل وغیرہ یہ سب تھے۔ بہت خطرناک حملہ تھا۔ لیکن اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ جو لبنان کی آرمی اور لبنان کی حکومت نہیں بول رہی ہے، اب اس کے گلے تک کو گھوٹ رہا ہے اسرائیل۔ 3 لبنانی فوجی مار دیے ہیں، یہ حزب اللہ کے لڑاکے نہیں ہیں، لبنان کی آفیشل پروفیشنل آرمی کے 3 فوجی۔ اور اس کو لے کر امریکہ تک کے کان الرٹ ہو گئے۔ انہوں نے اسرائیل سے کہا ہے کہ کیا کر رہے ہو، یہ پڑی سٹک مت لو بھائی، تم سمجھ نہیں رہے ہو، یہ کانفلکٹ اگر بڑھ گیا نا تو اسے نپٹانا مشکل ہوگا۔ یہ اب تک
अपने आप को हिजबुल्लाह से अलग रखकर बैठे हुए हैं। तुम बेरूत में कर रहे हो, हम तुम्हें समझा रहे नहीं, मान रहे हो, तुम उनके सोल्जर मारने लगे। US expresses concern to Israel about strikes against Lebanese army. अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन, इसको भी फिक्र हो रही है। इसने फिक्र जाहिर की, अमेरिका ने फिक्र जाहिर की है कि लेबनान की आर्मी पर जिस तरीके से इजराइल ने हमले किए हैं, क्योंकि वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानते हैं, वो जानते हैं इसके नताइज क्या होंगे। और वहाँ गजा में, नॉर्थ गजा में, इसी अल जजीरा की पिछली वाली खबर में है कि फायर फाइटर्स के लिए बड़ा मुश्किल है, हर तरफ आग लगी हुई, नॉर्थ गजा को तबाह कर रहा है इजराइल। और जो है आखिरी जो फायर फाइटिंग ट्रक था, जो फायर ब्रिगेड का ट्रक था, वो भी इजरायली हमले में तबाह हो गया। अब कैसे आग बुझेगी समझ में नहीं आ रहा, शोले भड़क रहे हैं हर तरफ। टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन है एटलीस्ट 2 इंजर्ड, 2 लोग इंजर्ड ये बता रहे हैं। हालांकि अपडेट ये है कि कई लोग जख्मी हुए हैं आज हिजबुल्लाह के जबरदस्त हमलों में। अगर हिजबुल्लाह के अड्डों पर ये कर रहे हैं तो हिजबुल्लाह भी कर रहा है। 50 रॉकेट दागे लेबनान की तरफ से गए नहारिया एरिया जो इजराइल के कब्जे में, उस पर। और बताया गया इजरायली अखबार ने 2 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि नुकसान इससे कहीं बड़ा है और कहीं ज्यादा है। इसी में एक, अगर आप नीचे देख रहे होंगे तो यहां पर एक नीचे इनके अपडेट आ रही है। पुतिन ने कहा है ब्रिक्स में कि मिडिल ईस्ट एक फुल स्केल वॉर की ब्रिंक पर खड़ा है, और लगातार ये हमले लेबनान से गजा पर, ये सब, यानी पुतिन वहां बैठकर ये कह रहे हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़ी वॉर की तरफ बढ़ रहा है, एक फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, और इस सब की जड़ इजराइल है और उसके पीछे खड़ा अमेरिका। हिजबुल्लाह ने एक बड़ी लिस्ट पेश की और बड़ा दावा किया है। मैं उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, कोई सनसनी नहीं मचाऊंगा, इसलिए मैंने अलग से इस पर कोई एपिसोड बनाया नहीं, क्योंकि मेरे पास इसके विजुअल नहीं थे। हालांकि हिजबुल्लाह की दी हुई लिस्ट है, तो मैं एक खबर हेडलाइन बनी तो बताऊंगा। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है जमीन का, जो इजराइल ने साउथ लेबनान पर हमला शुरू किया है, तब से 70 इजरायली फौजी मारे गए हैं। 70 से ज्यादा इजरायली फौजी मारे गए हैं तब से हिजबुल्लाह के हाथों, और 28 टैंक के परखच्चे उड़ गए हैं, 2 दर्जन से ज्यादा टैंक के, और आर्मर्ड व्हीकल्स और न जाने। और मतलब इन्होंने कहा 70 तो हमने मारे हैं, सैकड़ों में हमने जख्मी किया है। अब उनका नसीब और मुकद्दर क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी डिटेल में भी, इस पूरे आर्टिकल में भी वो डिटेल्स माइन्यूट नहीं थी, तो मैं इसका भूकाल नहीं काटूंगा सर। लेकिन ये आपके लिए खबर है, 70 प्लस फौजी मारे गए इजराइल के लिए बड़ी शर्म की बात है अगर ये सच है जो हिजबुल्लाह ने दावा किया है। 28 से ज्यादा टैंक, तो हमने कई टैंक तबाह होते देखे हैं, और भर भर के हेलीकॉप्टर्स में बॉडीज और घायल फौजी ले जाते देखे हैं। लेकिन लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि इजराइल की तरफ मारे जा रहे हैं, गजा में मजलूम भी मारे जा रहे हैं। अब तक जो जबालिया कैंप में मिशन चल रहा है, ऑपरेशन चला रही है इजरायली फौज कि यहां हमास फिर से आ गया है, हमें उन्हें कुचलना है, उसके नाम पर आम लोगों को कुचला जा रहा है। 19 दिन से नॉर्थ गजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप में ऑपरेशन जारी है आईडीएफ का, और अब तक 770 लोग मारे जा चुके हैं। 770 फलस्तीनियों ने अपनी जान गंवाई है, हर तरफ तबाही है। आप वहां के मंजर नहीं देख सकते, आपने इसे गजा इससे पहले ऐसा नहीं देखा होगा। गजा मीडिया ऑफिस ने ये दिया है और ये कहा है कि 1000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए हैं, और 200 सिविलियन ऐसे हैं जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें इजरायली फौज किडनैप करके अपने साथ ले गई है। ये जुल्म की इंतहा है। ये फलस्तीनी मीडिया ने, गजा की मीडिया ने जानकारी दी है, इसीलिए मीडिया के लोगों को अब आतंकवादी बता रहे हैं। अल जजीरा के 6 रिपोर्टर्स को इजराइल ने यह कह दिया है कि ये लोग पीआईजे के फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद और हमास के एजेंट्स हैं, बल्कि उनके एक्टिव मेंबर हैं, ताकि इजराइल उन 6 लोगों पर हमला कर सके, एक्शन कर सके। वो लोग नहीं होंगे तो, बड़े बड़े रिपोर्ट्स, वो लोग नहीं होंगे तो गजा के हालात कौन दिखाएगा सर? वो जो दिख रहे हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। इजराइल ने सीरिया पर भी अटैक किया है, जहां पर एक शख्स मारा गया है, कई लोग घायल हुए हैं। इजराइल की लगातार सीरिया पर ऐसी स्ट्राइक्स होती रहती हैं। अलमायदीन की खबर है। हाँ, इरना की खबर है, जो अरागची हैं, अब्बास अरागची, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, वो लगातार ब्रिक्स की बैठक पर नजर रखे हुए हैं। वहाँ ईरान का दबदबा बढ़ रहा है, कैसे ईरान से सारे ममालिक मिल रहे हैं। और ये सब कुछ तब हुआ है जब अभी 1 अक्टूबर को ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं ना इजराइल पर, अमेरिका का खौफ खाए बिना। तब लोगों को समझ में आ गया कि ईरान की ताकत क्या है।
ईरान का मर्तबा रुतबा और बढ़ गया। तो इस वजह से अब्बास अरागची ने क्या कहा है वो सुनिएगा। सन राइजिंग फ्रॉम ईस्ट ट्रूली सेटिंग इन वेस्ट। सूरज हमेशा पूरब से उगता है और ये सच है कि उसे वेस्ट में ही डूब जाना होता है। ब्रिक्स की समिट पर नजर रखे हुए हैं। ये क्या इशारा है कि वेस्ट का सूरज डूबने वाला है, ईस्ट का उगने वाला है। असल में पुतिन ने रात एक नई करेंसी दिखा दी है, ब्रिक्स की अपनी करेंसी। और ब्रिक्स का जो मेंबर होगा वो उस करेंसी में लेन देन व्यापार सब कुछ कर सकता है, एक दूसरे का कर्जा भी अदा कर सकता है। ये बहुत बड़ी चोट डॉलर को लगने वाली है। डॉलर का भूकाल खत्म, अमेरिका खत्म। किसी ने कमेंट किया था, मैं उन्हें क्रेडिट देना चाहता हूं मेरे पिछले वीडियो पर, एक था डॉलर। ये मूवी बन सकती है सर, एक था डॉलर। मैं अपने व्यूअर्स के कमेंट पढ़ता हूं, अच्छे होंगे मैं हमेशा शामिल करूंगा। चलिए, ईरान और चाइना की मुलाकात हुई। मसूद पेजेश्कियान और शी जिनपिंग ने बातचीत की है ब्रिक्स की मीटिंग से इतर। और यहां पर बात हुई है लेबनान और गजा की। अगर ये जंग नहीं रुकी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा पूरे रीजन में, कहा गया। और चाइना के व्यापार के एतबार से भी सही ना होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट चाइना के व्यापार के नजरिए से एक बहुत बड़ा हब है। चाइना का अरबों डॉलर का या अरबों येन का यहां पर माल डंप होता है। अगर एक जंग होगी, लोगों के बिजनेस ठप होंगे, लोग जा नहीं पाएंगे, खरीदारी भूल जाइए, अपनी जान बचाने को दौड़ेंगे, तो चाइना का माल नहीं बिकेगा। चाइना इस एतबार से हो सकता है कि कोई पीछे रहकर स्टेप उठाए। मसूद पेजेश्कियान ने उन्हें बताया है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के प्रेसिडेंट ने उन्हें बताया है, माफ कीजिएगा, कि भाई हम लोग ब्रिक्स में आए तो हैं 16 समिट में, लेकिन हमें बात कर लेनी चाहिए उस मसले पर जो ब्रिक्स से इतर है, उसके इश्यूज से इतर है, क्योंकि वो हमारे और आपके वजूद से और व्यापार दोनों से जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की इस दौरान खास मजम्मत की गई। उनके जो इजराइल के पीछे जिस तरीके से अमेरिका आग बंद करके खड़ा हुआ है, उसको लेकर ईरान ने मजम्मत की, लताड़ा भी। चाइना वाले शी जिनपिंग उन्होंने भी इस पर हामी भरी। ईरान के, आप जरा देखिए, मैंने कल आपको सुबह खबर दिखाई थी, बहुत बोले अरे जिंदा है तुम यार, ऐसी कहते हो। हिजबुल्लाह ने कंफर्म कर दिया कि उनके जो हसन नसरल्लाह के बाद चीफ थे बनने वाले सैफुद्दीन साहब, वो मर गए। अब वो मर गए तो उनको लेकर एक इरना ने हेडलाइन लगा दी, ईरानियन ऑफिशियल्स एक्सटेंड कंडोलेंसेस ऑन सैफुद्दीन मार्टिर। सैफुद्दीन की शहादत पर ईरान के ऑफिशियल्स ने खिराज अकीदत पेश की। ये उनकी कल रात की हेडलाइन है। बस इतनी खबर देनी है कि कंफर्मेशन हो गई है। कल ही रात आ गई थी, मैं ले नहीं पाया तो मैंने आपको ली नहीं, मैंने जबरदस्ती, क्योंकि मैं सुबह कंफर्म कर चुका था। अल अक्सा मॉस्क डिफाइल्ड येट अगेन। अब अल अक्सा मस्जिद में ज्यूइश सेटलर्स का जो बदतमीजियां और नंगाई है वो जारी है, जबकि इन्हें वहां पर जाने की इजाजत नहीं है, यूएन के कानून के हिसाब से भी और बाकी कानूनों के हिसाब से भी। तो ये लोग कल भी गए, इन्होंने बदतमीजियां की, वहां पर अपने टालमुडिक राइचुअल्स अंजाम दिए, और ये सब कुछ अल अक्सा मस्जिद की पामाली जो है और हुक्म उदूली यूएन की भी, ये सब जारी है। और ये सब इजराइल की पुलिस की निगरानी में होता है। तो क्या इजराइल का मौकिफ लोगों को समझ नहीं आ रहा? तुर्की ने इराक और सीरिया पर अटैक किया है, एयर स्ट्राइक्स की हैं, क्योंकि जो है उनकी डिफेंस एक जो कहना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर रात कल अटैक हुआ अंकारा में, इस वजह से उन्होंने इसे किया। कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी के लोगों पर इल्ज़ाम लगाया है तुर्की ने कि भाई आपने हमले किए हम लोगों पर, अब आपको छोड़ेंगे नहीं। अब सोचिए, सदर एर्दोगान इस वक्त रूस में है और इन हमलों की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो ब्रिक्स ज्वाइन करने जा रहे हैं नाटो छोड़कर, इस वजह से ये सारे हमले हुए। कई तरह के इस तरीके के अंदाजे लगाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा, बुरे लोगों से मैं कभी माफ़ी नहीं मांगता। मेरे तमाम व्यूअर्स 101% अच्छे हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।